Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will start a new chapter, chapter number 7, tertiary activity. In this year, due to COVID-19, the CBSE reduced the some syllabus, and in this reduced syllabus, the chapter number 6, secondary activity, is not included in the evolution of 2020-21 session. तो हम उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे और उसके आगे वाला जो ये चैप्टर है उस चैप्टर को चैप्टर नंबर 7 टर्शियरी एक्टिविटीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो टर्शियरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विथ इंटेंजिबल आउटपुट्स। These include a large diversity of services ranging from that of a technician or a plumber to that of a lawyer or a teacher or a computer operator. तो tertiary sector, it is also called the service sector because this sector, these activities, service activities provide the services to the प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं एंड दिस इज ए सर्विस प्रोवाइडर एक्टिविटी। तो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं इसीलिए इन्हें सर्विस एक्टिविटी भी कहते हैं। और ये एक टेक्नीशियन से लेकर के एक प्लम्बर और लॉयर, टीचर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स कुछ भी हो सकती है। Tertiary activities are not involved in material production. They stand in contrast to manufacturing industries which produce goods of different varieties. It is not easy to measure the output of these activities. इन activities को out measure करना बहुत ही difficult है and they can be measured by only indirectly in terms of wages and salaries. और उनको हम indirectly wages और salaries में ही measure कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई जैसे गुड्स और गुड्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी क्वांटिटी होती है बट सर्विसेज की कोई क्वांटिटी नहीं होती है। सर्विसेज आर मेजर्ड बाय द वेजेस एंड सैलरी गिवन टू द सर्विस प्रोवाइडर। However, some services such as a fast food franchisee are concerned with tangible output. The basic difference between manufacturing and service products is that the expertise provided by services relies much more directly on workforce, skills, experience and knowledge than on physical technique embodied in machinery or process of products. Types of tertiary activity, which types of activities are involved in the tertiary activity? The first is trade and commerce, transport, communication and services. The first activity is trade and commerce. Trade and commerce activity, buying and selling of goods is known as a trade. Trade means buying and selling of a good is a trade. And places like towns and cities where trade is carried on are known as trading center. तो buying and selling process is called the trade and the places where these services, these facilities are available or performed, these activities are performed, they are calling the trade centers. Rural and trading centers can be rural as well as urban. Rural areas में भी हो सकता है और urban areas में भी हो सकता है। तो rural marketing center, रूरल मार्केटिंग सेंटर, जो रूरल एरियाज में हैं उनको रूरल मार्केटिंग सेंटर्स कहेंगे। दीज सेंटर्स प्रोवाइड ट्रेडिंग सर्विसेज टू द नियर बाई सेटलमेंट्स। These are most rudimentary centers where personal and professional services are not well developed. ये वैसी जगह हैं जहां पर
पर्सनल सर्विसेज जो हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड, सच प्लेसेज एक्ट एज कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर। इन सेंटर्स को हम कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स भी कह सकते हैं एट द लोकल लेवल, और ये लोकल लेवल पर होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेंटर्स हैव मंडीज, इन्हीं में से मोस्ट ऑफ दीज सेंटर्स हैव मंडीज। सब्जी मंडी, अनाज मंडी, ये जो मंडीज होती हैं उनको हम ट्रेड सेंटर्स भी कह सकते हैं। एंड होलसेल मार्केट्स एंड ऑल्सो रिटेल एरियाज। होलसेल और रिटेल ये दो टर्म हैं, होलसेल एंड रिटेल। तो होलसेल मंडी होती है, मंडी में होलसेल का काम होता है, मीन्स एक साथ एक बल्क क्वांटिटी में जो मटेरियल है वो सेलिंग और बाइंग की जाती है। और रिटेल जो है, रिटेल में जो खुदरा वाले, इट मीन्स जो स्मॉल क्वांटिटी सेल आउट करते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। तो होलसेलर जो शॉपकीपर्स को माल बेचते हैं वो होलसेलर हैं, और रिटेलर जो होलसेलर्स से लेकर के और शॉप वाले हैं वो बेचते हैं रिटेलर्स। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स मेक अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज टू द रूरल folk लिविंग इन इट्स नियर विसिनिटी। इट मीन्स ये जो सेंटर हैं रूरल मार्केटिंग सेंटर, जिसे हम मंडीज भी कहते हैं, ये अपने नियर बाई एरियाज के लोगों को ही सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। देन पीरियोडिक मार्केट्स। पीरियोडिक मार्केट्स, पीरियोडिक मार्केट्स वो होते हैं जो एक फिक्स्ड पीरियड में काम करते हैं, फिक्स पीरियड में ही वो मार्केट चलते हैं। इन सर्टेन रूरल एरियाज वेयर देयर इज नो रेगुलर मार्केट्स, जहां पर रेगुलर मार्केट नहीं है, रूरल मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, वीकली या 15 डेज या मंथली। ऐसे जो मार्केट लगते हैं रेगुलर इंटरवल से, दीज आर यूजुअली वीकली और बाई वीकली मार्केट्स विच कैटर टू द नीड्स ऑफ द सराउंडिंग रूरल पीपल्स। जो लोगों की जरूरत की चीजें हैं, आसपास के लोगों की, सराउंडिंग पीपल्स, उनकी नीड्स को ये फुलफिल करते हैं। These markets are held on specific days and move from one place to another place. Specific days, weekly, संडे की संडे, या फिर 15 दिन से आते हैं तो उनमें भी एक डेज फिक्स होता है, और मंथली होते हैं तो उनमें भी एक डेट फिक्स होती है कि हर मंथ की इस डेट को ये मार्केट लगते हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल है उसमें। और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, आज इस विलेज में है, अगले नेक्स्ट डे सेकंड नेक्स्ट विलेज में, और फिर नेक्स्ट डे अनदर विलेज में। These markets, thus the shopkeepers serve a much larger area and remain busy on all the days. इससे क्या होगा कि एक जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो शॉपकीपर है, वो एक लार्ज एरिया को कवर कर लेगा, और वो भी रोज एक नए नए दिन, मीन्स जो पीरियोडिक मार्केट्स लगेंगे एक रेगुलर पीरियड के बाद लगते हैं, तो वो एरिया अनदर डे अनदर एरिया अनदर प्लेस, तो डिफरेंट डे डिफरेंट प्लेसेस परफॉर्म देयर एक्टिविटी, सो दे कवर्ड ए लार्ज एरिया एंड एवरी एरिया हैज ए न्यू एक्सपीरियंस। तो नए ग्राहक मिलेंगे और नई डेट होगी। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, urban marketing center, these are set up in urban areas and provide goods and services to the urban people. रूरल ट्रेड, रूरल मार्केटिंग सेंटर रूरल एरियाज के लिए, रूरल पीपल्स के लिए, अर्बन मार्केटिंग सेंटर अर्बन एरियाज के लिए फॉर द अर्बन पीपल्स। एंड गुड्स प्रोवाइडेड आर जनरली फ्रॉम द सेकेंडरी एक्टिविटी manufactured goods, while the services made available are those of professional such as teachers, lawyers, doctors, consultants, etc. अर्बन सेंटर्स में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो गुड्स
जो निकलते हैं उन गुड्स को ये सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। और जो अनदर सर्विसेज हैं लाइक द टीचिंग, लॉयरशिप, डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स, दीज आर प्रोवाइड इन द अर्बन एरियाज।